You sharing all those details with us. Now, air quality in the national capital has deteriorated sharply in the capital and NCR region, prompting the CAQM, which is the Commission for Air Quality Management, to invoke stage 4 of CRAP. Standing at 491 today on 14th December, the AQI has slipped to severe plus category, nearing 500. A thick layer of smog covers the capital, reducing visibility for residents. As part of the GRAP 4 implementation, restriction ban construction activities and truck entry. Schools have been shifted to hybrid learning and CAP offices at 50% capacity. Residents are reporting breathing difficulties, demanding the government to take immediate action. My colleague Rumi Mishra now joins us. She is going to walk us through the AQI across Delhi. See that the red is continuing to just grow, right? The AQI in Delhi right now altogether is 740. The air quality is hazardous. CO levels are 1000 ppb. NO2 levels are 69 ppb. Ozone levels are 3. PM10 level is 608 μg per meter cube, while PM 2.5 levels are at 446. Now, if we move to Delhi in particular, you see that this area near Mojpur, Mahara Mohalla, has an AQI of 1037 right now. Whereas if we take a look at New Delhi here, 591, it's near Mandir Marg in New Delhi. The AQI has, of course, suddenly surged across the national capital region. We are now looking at Panchsheel, Vihar, where AQI is 716. Meanwhile, 900 AQI level is also clearly seen at some regions, including Civil Lines, which is, of course, a very populated area. It's one of the most upscale areas as well in Delhi. Mojpur is seeing 933. On the other hand, Chanakyapuri, you can see it's ranging from 663 to 609. 722 AQI is seen. And meanwhile, very close to Chanakyapuri near the Shantipath, Anand Niketan Block B has an AQI of 730. Jawaharlal Nehru Stadium has an AQI of 565 right now. In fact, it has now been upgraded to 613, we can see, which is, of course, again, hazardous air quality. Delhi's air has become nothing more than toxic for everyone who's living in Delhi. Again, you see 786 AQI right here. Meanwhile, if I move a bit up towards NSP, which is where our office currently is, the AQI right here is 854. Meanwhile, Sector 13 of Dwarka, the AQI is 726. At Sector 12, it's 720. At again, the Motiwala Bagh, it's 880. So the AQI is ranging anywhere from 580 to 1072 right now. In fact, 1037 you see here at Mahara Mohalla, which has been updated again. 1021 is your AQI near Niti Khand at the Indraprasth Road, again, which is very, very toxic for anyone who's living there. Delhiites continue to choke in this toxic air, and of course, a lot of methods are being used by the Delhi government, but visibility, of course, is also very low this morning. Over to you, Medha. Thank you, Rumi. I appreciate you sharing all those details with us. I'm also being joined by my colleagues Brian Thomas from Pragati Maidan, Arzu Seth from ITU, Anil Chaudhary from Ghaziabad, Akram Khan from Greater Noida, as well as Gulshan Grover from Gurugram. I would like to go across to you first, Brian. You're at Pragati Maidan right now. What is the AQI like at there? Well, clearly the air quality here continues to soar. Right now, the air quality here is 473.
again in a very severe category itself. And before we continue speaking, I'd like to show you the visuals of how alarming this looks. The entire smog has engulfed the very national capital. Since we are at an elevated space, we are over a foot over bridge, so it's easier for us to show visuals of the fact how it looks. You can see the visibility is clearly compromised here, what we are showing you. The visibility is clearly near about very difficult. 300-400 meters away from us, it is clearly not visible. On the right hand side, if I request my camera person Himanshu to just pan around and show you the Bharat Mandapam. The Bharat Mandapam, behind the Bharat Mandapam very structure is clearly not visible because that level of smog has reached here. And yes, the government has clearly re-established GRAP 4 measures. Hybrid schools, schools have gone into hybrid mode, construction bans has implemented in the national capital. But again, the big question remains whether it will be continuing or it will be controlling the national the pollution menace. What you see ahead, I'll request my camera person to just pan to just zoom in and show you. It is an extended structure of the Bharat Mandapam campus, which is clearly not at all visible. And you just see an outline of it, just a very outline of it, that you understand that's a building, but it is not visible because of this level of smog which is engulfing an at this very place. And this is 9-10 a.m. You wonder in the morning itself at 6 a.m. or 5 a.m. or late evenings, the situation would remain worse, more critical as of now, because now you expect that it's morning time, people are going, office goers are going for work, schools are clearly on hybrid mode itself. So clearly people will be traveling a lot at this point of time. But still at 9-10 a.m. also, when the sun is also here itself, the sun rays are also pouring in, but still the visibility is becoming a challenge. So you imagine in the morning when people are traveling from one place to another, the visibility would be very critical, and as a result of that also, health conditions are also getting deteriorated itself in the national capital, where people are facing the major wrath of it. Yes. Alright, Brian, I request you to please stay on with me. Let me go across to my colleague Anil Chaudhary, who is live right now in Ghaziabad. Anil, you're in Ghaziabad right now. What is the AQI like in Ghaziabad? What are the authorities saying as well? देखिए, गाजियाबाद के कविनगर इलाके में इस वक्त मौजूद हूं और तस्वीरें अपने आप में बयां करेंगी आखिरकार किस तरीके का वातावरण आज गाजियाबाद में देखा गया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से पोल्यूशन की जो घनी चादर है वो सड़कों पर दिख रही है। पोल्यूशन के साथ साथ कोहरा भी आज है, वो ही लोगों को आज बेहद परेशान कर रहा है। आप देखेंगे जो तस्वीरें आप साफ तौर पर देखेंगे, मात्र 20 मीटर की दूरी के बाद हम देख नहीं पा रहे हैं, क्योंकि पोल्यूशन और कोहरा दोनों का मिश्रण जो है आज सड़कों पर कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। रिहायती इलाका है, आसपास में कुछ भी नहीं दिख रहा है, क्योंकि ये पोल्यूशन लगातार अब बढ़ रहा है। 450 के पास एयर क्वालिटी इंडेक्स पहुंच गया है गाजियाबाद का। गाजियाबाद का कुछ इलाकों का पोल्यूशन AQI की अगर बात करें तो 400 के 80 के पास भी पहुंचा हुआ है। वसुंधरा 480 है, लोनी का इलाका 460 दर्ज किया गया है, और इंदिरापुरम की बात करें तो इंदिरापुरम भी 360 के पास पहुंचा हुआ है। हालांकि ग्रैप 4 के नियम लागू कर दिए गए हैं। ग्रैप 4 के नियम, क्योंकि स्थिति बेहद खराब है, उसको देखते हुए ग्रैप 4 के नियम दिल्ली NCR में लागू कर दिए गए हैं। ग्रैप 4 के नियम जब लागू किए जाते हैं तो कई पाबंदियां जो है इंप्लीमेंट कर दी जाती हैं, उनको लागू कर दिया गया है। जैसे कि सरकारी और प्राइवेट जो दफ्तर हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ जो कर्मचारी 50% ही काम करेंगे और बाकी के वर्क फ्रॉम होम करेंगे। साथ ही 10वीं और 12वीं क्लास के जो स्टूडेंट हैं उनको छोड़कर बाकी जो क्लासेस हैं उनकी तमाम जो क्लासेस की जो है छुट्टी कर दी जाएगी। सिर्फ और सिर्फ हाइब्रिड मोड पर ही क्लास जो है चलेंगी, जिससे कि बच्चों की सेहत के साथ कोई खिलवाड़ ना हो, ये आदेश जारी हो जाते हैं। वहीं ग्रैप 4 के नियम जब लागू हुए हैं तो ऐसे में जो वाहन है, कुछ वाहनों पर भी प्रतिबंध लगता है। BS4 के जो वाहन है उन पर रोक लगेगी, उनको अब सड़कों पर चलने नहीं दिया जाएगा, क्योंकि आसपास का जो वातावरण है बेहद खराब हो चुका है। साथ ही जो दिल्ली है, दिल्ली में जो ट्रक है उनकी एंट्री पर बैन लगा दिया गया है फिलहाल।
और साथ ही जो कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं उनको फिलहाल बंद करने के आदेश अब दे दिए गए हैं, क्योंकि पोल्यूशन बढ़ रहा है। 450 के पास एयर क्वालिटी इंडेक्स बेहद खराब श्रेणी में माना जाता है। ऐसे में गाजियाबाद का जो स्वास्थ्य विभाग है उनकी तरफ से कई ऐसे प्रावधान और कई ऐसे आदेश जारी किए गए हैं, जैसे कि ओपीडी 24 घंटे चलाने के आदेश कर दिए गए हैं। जो डॉक्टर हैं वो 24 घंटे जो है अस्पताल के अंदर, जो सरकारी अस्पताल है उनमें मौजूद रहेंगे। साथ ही ये भी हिदायत लोगों को दी गई है, लोग जरूरी काम हो तो ही घर से बाहर निकलें, अन्यथा घर में रहें, और निकल भी रहे हैं तो मास्क का इस्तेमाल जरूर कर लें, क्योंकि हवा अब इनहेल करने लायक नहीं बची है। इसी बेकार हवा से लोग अब बीमार हो रहे हैं। सर्दी, खांसी और आंखों में जलन और हार्ट की जो डिजीज है वो भी लोगों को अब होने लगी है। तो ऐसे में लोगों को विशेष अपना ध्यान रखना होगा। जो तमाम अथॉरिटीज हैं अपनी तरफ से अपना अपना काम कर रही हैं, पर आम जनता को भी अब अपनी सहभागिता इसमें दिखानी होगी। घर के बाहर यदि कहीं कोई धूल मिट्टी उड़ रही है तो वहां पर पानी का छिड़काव लगातार करते रहे। इस तरीके का जो प्रावधान है वो लोगों को सजेस्ट किया जा रहा है, लोगों से कहा जा रहा है कि लोग अपने स्तर से भी काम करें, क्योंकि जो गाजियाबाद का जो नगर निगम है उनकी तरफ से हालांकि लगातार सड़कों पर छिड़काव का जो काम है वो आज से लगातार किया जा रहा है, जिससे कि इस खतरनाक पोल्यूशन से कुछ राहत मिल जाए। जी, I request you to please stay on with me. I'm also being joined by my colleague Arzu Seth from ITO. Arzu, you're at ITO right now. What is the AQI reading at that area? Well, yes, the AQI in the national capital is in the severe category today, and I would like to show you the visuals from the ITO, because here also the AQI is close to 480, which is very much hazardous, serious situation right now. As you can see, the building around, it's one of the most VIP area, and you can see the haziness in the environment. There is a less visibility, a thick layer of smog that has engulfed the entire area. And also if we talk about the AQI in the national capital, the overall AQI is 460, which is in the severe category. Also would like to show you the AQI at the other places, and you can see all the areas have now turned into a red zone. There is not a single place where the AQI is below 400. At all the places in the national capital, the AQI is in the severe category. Where I am standing right now at ITO also, you can see the AQI is 482, and at Jahangirpuri also it's 495. So at several places the AQI is close to 500. So definitely keeping this situation in mind, now the CAQM has already implemented GRAP stage 4 in the national capital. There are restrictions, the offices will be working with the 50% attendance. There will be work from home. Also the classes will be in the hybrid mode. Apart from that, the government is also taking measures like they are sprinkling water on the road. As you can see just now, the water sprinkler has passed from this road, and the sprinkling has been done so that the dust particles can be settled on the road and it does not go in the air to create more pollutants. So definitely the situation is very alarming right now in the national capital. Delhi has turned into a gas chamber, as the AQI at several places is close to 500, which is leading to several health issues among the people. We have interacted with a lot of people, and they told us that their cough is not being cured. They are facing problem in their eyes, and also the breathing issue that the people are facing, and they are unable to take the breath properly in this toxic air. And they request the government to do something for the people, because this is equal to dying by breathing in such a toxic air. Yes. Alright Arzu, I request you to please stay on with me. Now my colleague Akram Khan is also joining us live from Greater Noida. Akram, you are in Greater Noida right now. What is the AQI like there? What are the authorities saying? अब देखिए, गौतम बुद्ध नगर में अगर AQI लेवल की बात करें तो
435 के आसपास दर्ज किया गया है, जो कि बेहद गंभीर श्रेणी में आता है। और ये AQI लेवल फिर दोबारा से बढ़ा है। बीच में थोड़ा ठीक हुआ था, लेकिन एक बार फिर दोबारा से जब AQI लेवल बढ़ा है तो उसके बाद जो धुंध है वो सड़कों पर देखी जा रही है। इसके अलावा ग्रेड 4 के नियम तो लागू हो ही गए हैं। एक तस्वीर और मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि इस समय देखिए कैसे ग्रेटर नोएडा में जो धुंध है उसकी काली चादर आप देख सकते हैं, और उसकी वजह से लोगों को बेहद मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। देखिए सामने जितना भी देखेंगे आप, ये परी चौक के पास का एरिया है और दूर दूर तक कहीं भी आपको कोई इमारत नजर नहीं आ रही है, और विजिबिलिटी इतनी कम है जिसकी वजह से हादसों की भी खबरें आ रही हैं। कल सुबह जब ये नोएडा, ग्रेटर नोएडा में एक्सप्रेस वे पे तमाम मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था लोगों को, जिस तरह की तस्वीरें आप देख रहे हैं, इससे और भी ज्यादा घना कोहरा हाईवे पर था, जिसके बाद कई दर्जन वाहन आपस में टकराए थे और कुछ लोगों को चोटें भी आई थी। इसी तरह के हाईवे पर जो धुंध की काली चादर है और जो कोहरा है उसके कहर की वजह से लोगों को बेहद मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। परी चौक के पास की ये तस्वीरें हैं, आप देख सकते हैं किस तरह से जो वाहन है वो भी नजर नहीं आ रही है और जो इमारतें हैं वो बिल्कुल पूरी तरह से कहीं भी दिख नहीं रही है। इसके अलावा देखिए अगर हम ग्रेटर नोएडा की बात करें तो जिस तरह से कल जो बड़ी संख्या में गाड़ियां आपस में टकराई थी उसको देखते हुए यमुना एक्सप्रेसवे ने एक बड़ा फैसला लिया है। हालांकि हर साल ये नियम लागू किया जाता है कि 15 दिसंबर से यानी कल से जो स्पीड लिमिट है यमुना एक्सप्रेसवे, नोएडा, ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे और एलिवेटेड रोड जितने हैं वहां पर 15 दिसंबर से लेकर 15 फरवरी तक के लिए जो स्पीड लिमिट है वो घटाई गई है, ताकि जो हादसे हैं उनमें कमी आ सके और उनमें लोगों को बचाया जा सके। जो अब से पहले 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से स्पीड होती थी, उसके अलावा अब हल्के वाहनों के लिए 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से घटाकर 75 प्रति किलोमीटर घंटे की रफ्तार कर दी गई है। इसके अलावा जो भारी वाहन है उनकी स्पीड लिमिट घटाकर 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार कर दी गई है, और पूरे 2 महीने तक ये नियम लागू रहेंगे। क्योंकि हमने देखा है कि जब भी नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेसवे पर जो हादसे होते हैं कोहरे के समय पर, तो 30-30, 40-40 गाड़ियां भी आपस में टकराती हैं, क्योंकि एक के बाद एक कई गाड़ियां टकराती चली जाती हैं, जिसके बाद बहुत सारे लोगों को चोटें भी लगती हैं। इसके अलावा यमुना अथॉरिटी और ट्रैफिक विभाग ने रिफ्लेक्टर और जो फॉग लाइट है वो जलाकर जो ट्रैफिक नियम है स्पीड लिमिट के साथ वो पालन करने के अपील लोगों से की है। और दूसरी बात यह है कि जितने जो यमुना एक्सप्रेसवे है वहां पर 3 टोल प्लाजा, क्योंकि ये 165 किलोमीटर लंबा हाईवे है आगरा तक, वहां पर 3 टोल प्लाजा पड़ते हैं, जहां पर टोल प्लाजा पर पब्लिक एड्रेस सिस्टम के जरिए यानी PA सिस्टम जो है उसके जरिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है और किस तरह से ट्रैफिक नियमों का पालन करना है वो सब बताया जा रहा है। इसके अलावा खास बात एक ये भी है कि जो भारी वाहन है उनको नींद नहीं आए या उस नींद की वजह से वो हादसे का शिकार नहीं हो, उसके लिए हाईवे पर चाय भी फ्री दी जा रही है। ये भी एक कह सकते हैं कि हादसों को बचाने की दिशा में एक अच्छा सराहनीय कदम कहा जा सकता है। दूसरी बात यह है कि जितने भी, क्योंकि ये यमुना एक्सप्रेसवे पे सबसे ज्यादा हादसे हो रहे हैं, क्योंकि जो यमुना एक्सप्रेसवे है वो यमुना नदी से सटा हुआ है, इसकी वजह से कोहरे के मार जो है वो बेहद ज्यादा है। इसको लेकर सबसे बड़ी चुनौती इस समय गौतम बुद्ध नगर में जिला प्रशासन और यमुना प्राधिकरण के सामने यही है कि जो हाईवे पर हादसे हो रहे हैं उनको कैसे कम किया जाए। स्पीड लिमिट जरूर कम की गई है, लेकिन उसके अलावा भी तमाम जो निगरानियां हैं वो रखी जा रही हैं, और ऐसे में जो भी ट्रैफिक नियम का उल्लंघन करेगा, जो स्पीड लिमिट तय की गई है उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी और जो NPR कैमरे हैं उनके जरिए चालान भी काटे जाएंगे। वहीं देखिए दूसरी बात यह है कि जिस तरह से कोहरे का असर देखने को मिल रहा है, कल सुबह ये कोहरा पड़ना ग्रेटर नोएडा में शुरू हुआ था और शाम होते होते फिर दोबारा से कोहरा पड़ा था, तो इसको लेकर हाइब्रिड मोड पर स्कूल चलाने के भी अब निर्देश दिए गए हैं। और जो पॉल्यूशन है वो 337 के आसपास, 335 के आसपास इस समय गौतम बुद्ध नगर में दर्ज किया गया है, जिसकी वजह से लोगों को दिक्कत भी हो रही है। तमाम जो प्रिकॉशन है वो लेने की अपील लोगों से की गई है। इसके अलावा जितनी कंस्ट्रक्शन साइट्स थी अब उनके रिव्यू किया जा रहा है, वहां पर छापेमारी भी की जाएगी, ऐसा प्रशासन ने कहा है। और जल्द ही जो ग्रेड 4 के नियम है उनका पालन भी कराया जाएगा। लेकिन लगातार जो AQI लेवल है वो गंभीर श्रेणी में बना हुआ है, जिसकी वजह से लोगों को मुश्किलें सामने आ रही हैं। वहीं जितने कोहरा हो रहा है उसकी वजह से, क्योंकि नोएडा, ग्रेटर नोएडा में कई ऐसे हाईवे हैं, ईस्टर्न पेरिफेरल पे कल हमने देखा था आधा दर्जन से गाड़ियां ज्यादा टकराई थी आपस में, और उसी की कुछ ही देर बाद दूसरी जगह पर भी इसी तरह का एक्सीडेंट हुआ था। तो बेहद चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि कोहरे का जो कहर है उससे हादसों में लगातार वृद्धि हो रही है, उसको कम करना एक प्रशासन की चुनौती है। और दूसरा, जिस तरह से कोहरा पड़ रहा है और ठंड शुरू हो गई है, तो ऐसे में जो अलाव है और जो रैन बसेरे हैं उसको लेकर भी
अब प्रशासन कल से मैराथन करता हुआ नजर आ रहा है। कई जगह फोटो साझा किए गए हैं और कई जगह अधिकारी निरीक्षण कर रहे हैं, जहां पर जो रैन बसेरे हैं वो सुनिश्चित किए जा रहे हैं कि अच्छे और बेहतर क्वालिटी के साथ रैन बसेरा का इंतजाम किया जाए, अलाव जलाया जाए और जो लोग खुले में घूम रहे हैं उनको वहां पर शरण दी जाए। तो इसको लेकर भी अब कल से काम शुरू हो गया है। हालांकि काफी दिन पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन कल से ये जो रैन बसेरे हैं, कम्युनिटी सेंटर हो चाहे बड़े जो सेक्टर हैं वहां पर ये कम्युनिटी सेंटर हो, चाहे बड़े जो इलाके हैं वहां पर जो रैन बसेरे हैं वो बनाए जा रहे हैं और जगह जगह अलाव की व्यवस्था भी अब कर रहा है प्राधिकरण। तो लगातार जो ठंड है उसका सितम अब बढ़ना नोएडा, ग्रेटर नोएडा में शुरू हो गया है, जिसको लेकर जिला प्रशासन अब अपनी तैयारियां पूरी करते हुए दिख भी रहा है। और देखना होगा कि आने वाले दिनों में जो रैन बसेरे हैं या जो ये हादसे हैं उनको कैसे कम ग्रेटर नोएडा में जिला प्रशासन कर पाएगा। जी। All right, Akram, I request you to please stay on with me. I'm also being joined by my colleague Gulshan Grover, who's reporting live from Gurugram. Gulshan, you're at Gurugram right now. What is the AQI reading there like? What are some of the measures that the authorities are asking that people take in this situation right now? 27 है, यानी 527 गुड़गांव का एयर क्वालिटी इंडेक्स है, जो बेहद खराब श्रेणी में है। हालांकि कल कुछ जरूर कम था और लेकिन आज सबसे ज्यादा है 527, जो कि लोगों के लिए बड़ी परेशानी का सबक बना हुआ है। एक तरफ सर्दी का अटैक है तो दूसरी तरफ प्रदूषण की मार। दोनों अटैक जो है इस जनता को झेलने पड़ रहे हैं। अब स्टेज 4 जो है जरूर लागू हो चुका है। स्टेज 4 में जो कई पाबंदियां हैं, अब क्या उन पर इम्प्लीमेंट होता है या नहीं होता है, ये एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। इससे पहले भी स्टेज 4 लागू हुआ था, लेकिन लोगों ने जमकर जो धज्जियां हैं वो उड़ाई थी। अब फिर दोबारा से कंस्ट्रक्शन पर रोक लग गई है, जनरेटर पर रोक लग गई है, कोयला जलाने पर रोक लग गई है, इसके अलावा जो कूड़ा जलाते हैं लोग उस पर रोक लग गई है। लेकिन ये रोक तो जरूर लगी है, लेकिन इसकी पालना हो रही है या नहीं हो रही है, अब ये एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। चाहे वो गुड़गांव म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हो या फिर पॉल्यूशन डिपार्टमेंट हो, जिला प्रशासन डिपार्टमेंट हो या हेल्थ डिपार्टमेंट हो, क्योंकि सभी टीमें कोऑर्डिनेशन करके इसको लेकर काम करती है। गुड़गांव इसलिए जो सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड शहर हम कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर तमाम तरह की जो इंडस्ट्रियां हैं वो यहाँ पर है, इसलिए भी एक बड़ी वजह है। दूसरी बड़ी वजह है, गुड़गांव के अंदर सबसे ज्यादा जो ट्रैफिक की समस्या है वो सबसे ज्यादा है, क्योंकि गुड़गांव में लोग पब्लिक वाहन का कम इस्तेमाल करते हैं जबकि प्राइवेट वाहन का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। एक ये भी बड़ी वजह है। लेकिन जिस तरीके के अब AQI में बढ़ोतरी हुई है, 517 अभी फिलहाल दर्ज किया जा रहा है, तो जो बेहद खतरनाक है। डॉक्टरों का भी ये कहना है कि ये साइलेंट किलर वायु प्रदूषण है। इससे हार्ट अटैक की समस्या, ब्रेन की समस्या, लंग्स की समस्या जो है वो आती है, लेकिन लोग जो है इसे इग्नोर कर देते हैं। लेकिन उसके बाद जैसे ही इग्नोर करते हैं, समय रहते ही वो ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं, तो उसके बाद उन्हें हार्ट अटैक आ जाता है या ब्रेन में प्रॉब्लम आ जाती है, तो अस्थमा की प्रॉब्लम हो जाती है, एलर्जी की प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये तमाम तरह की समस्याओं से उन्हें जूझना पड़ता है। इसलिए जो बुजुर्ग हैं, खासकर बच्चे हैं, गर्भवती महिलाएं हैं, वो घर पर ही रहे। अगर उन्हें जरूरत हो तभी वो बाहर निकले और मास्क का इस्तेमाल जरूर करें, क्योंकि मास्क इस समय उनके लिए बेहद जरूरी है। क्योंकि हवा जो गुड़गांव की है वो बेहद जहरीली हवा है, शुद्ध हवा की सांस वो नहीं ले सकते हैं। इसलिए अगर मास्क पहनेंगे तो जो हवा के जो कण है वो उनके शरीर में ना जा सके। अगर हवा के कण जो जाएंगे तो उनके अंदर तमाम तरह की जो बीमारियां हैं वो फैल सकेंगी और ये वायु प्रदूषण कैंसर भी फैला सकता है, ऐसा डॉक्टरों का कहना है। तो गुड़गांव की हवा इस समय बेहद जहरीली है, चाहे बेशक जो अभी हाल ही में स्टेज 4 जो लागू किया हो, लेकिन उसके बाद जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन गुड़गांव है उनको जो रोक लगानी चाहिए तमाम कंस्ट्रक्शन पर कहें या कूड़ा जलाने पर कहें या फिर टैंकरों से पानी के छिड़काव की बात कहें या स्वीपिंग मशीनों से मिट्टी को सड़कों से हटाने की बात कहें, तो आप इसे खाना पूर्ति ना करके ग्राउंड स्तर पर मजबूती से जो है तमाम अधिकारियों को उतरना होगा, तभी इस बढ़ते वायु प्रदूषण को रोका जा सकेगा। यदि इसी तरीके से लगातार AQI बढ़ता रहा तो आने वाले समय में लोगों को और भी कई गंभीर बीमारियों से जूझना पड़ सकता है, क्योंकि अभी भी सिविल अस्पताल कहें या प्राइवेट अस्पताल कहें
तो वहां पर तमाम तरह के जो मरीज हैं वो पहुंच रहे हैं। पहले से ज्यादा 20 से 30% ओपीडी बढ़ गई है। पहले ये ओपीडी लगभग 2000 से 2500 होती थी और अब लगभग 4000 के आसपास पहुंच गई है। तो तमाम आंखों में जलन के मरीज, गले में खराश के मरीज, या फिर कहे सांस लेने में दिक्कत के मरीज, अस्थमा के मरीज, एलर्जी के मरीज, बुखार के मरीज, जुकाम के मरीज, ये तमाम मरीज जो है इस समय अस्पताल में ओपीडी से अपना इलाज ले रहे हैं। अगर स्टेज 4 अब लागू तो जरूर हो गया है, लेकिन जिस तरीके से ऑनलाइन जो पहले कक्षा स्कूलों में की गई थी लेकिन उसके बाद ऑफलाइन कर दी गई थी, अब क्या डिप्टी कमिश्नर की तरफ से जो लागू किया जाता है कि अगर आदेश जो लागू किए जाते हैं कि अब क्या बच्चों को ऑनलाइन शिक्षाएं दी जाएंगी या फिर ऑफलाइन ही रहेंगी, या फिर वर्क फ्रॉम होम की बात करें जो ऑलराइट।